All right guys, welcome back to our YouTube channel. Hope you guys are doing amazingly well. आज हम लोग सिर्फ वॉन्डर नहीं, आज हम लोग रिव्यू भी करने वाले हैं. Yes, we are going to review about this beautiful ADVs which are available in Indian market right now, which is KTM 390 and the all new Himalayan 450. So हम लोग आए हमारे राइडिंग ग्रुप के साथ एक ब्यूटीफुल लोकेशन में जो है भीमा शंकर में. So आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड में. लोकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. Let's get into the review of this beautiful machine. So before I do that, I would like to invite the owner of this beautiful machine, KTM 390, Mr. Sameep Shah, on my channel for the first time. Welcome to the channel, bro. Thank you, bro. So he's my riding buddy from Motor Wanderers group, as you all can see. This is our riding group. So, bro, I have a list of questions to ask. तो वो हम लोग start करते हैं review में. पक्का. So, as a owner, you would like to add some points about what you feel about KTM 390. And as a 450 Himalayan, which I have test ridden, although it is not my vehicle, but yeah, what is my first opinion about this? I can share it in the video. Perfect. So, Okay. basically, until the Himalayan 450 came into picture, right? I thought that KTM 390 is a clear-cut winner. ठीक है, उसके अंदर मतलब कोई दूसरा दोहराया ही नहीं है. In terms of looks, in terms of performance, it was the king of the road. But with Himalayan 450 coming into picture, there are lot of areas जो हम compare कर सकते हैं दोनों बाइक्स के बीच में कि what are pros, what are cons, क्योंकि almost अभी दोनों का पावर जो है वो बाई पार है. So डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. जो ऑडियंस है उनके लिए भी क्लियर कट ये वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा which one to go for. That right now इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई KTM 390 ले या हिमालयन 450 ले. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो 390 और 450 जो है उसके बीच में एक जो मेजर डिफरेंस इन लोगों ने 450 में किया हुआ है, दैट इज द हाइट. 390 was more over meant for the tall people. जो छोटे हाइट के होता है, भी जैसे आई एम 5'8", so I still tiptoe the bike. तो बहुत बार ये होता है कि ऑफ रोडिंग वगैरह में आप जाते हो तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द बाइक. ऑन रोड यू कैन मैनेज फॉर श्योर, बट ऑफ रोड में टिप्टो करने के चक्कर में यू लूज योर बैलेंस एट टाइम्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज समथिंग दैट हिमालयन हैज टेकन, और रादर रॉयल एनफील्ड हैज टेकन वेरी गुड केयर ऑफ. तो वो एक thumbs up है. Definitely I feel the edge that Himalayan has over KTM for short riders. Correct. So maybe KTM 390 is a clear cut winner for tall riders. Like I am 6'1", तो मेरे लिए ये एकदम clear cut seat wise I would say is a clear cut winner. Yeah, in Himalayan there is a adjustable seat which you can raise it to 845 mm, and I think your standard seat is 855. 855, yeah. But people get it reduced, right? थोड़ा. You can get it reduced, but then eventually वही चीज़ हो जाता है कि कंपनी जो तुमको सीट देती है, that is thinking lot of things in mind, right? वो उसका जो cushion होता है, everything is being thought of much ahead. Triangle will exactly. जो ज्योमेट्री भी चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत सिटिंग पोस्चर चेंज हो जाता है, ergonomics चेंज हो जाता है, तो that is not something that usually company suggest कि you should do. तो डेफिनेटली अगर स्टॉक लेवल पे सोचो तो yes, I think that for a tall riders 390 is winner, yeah, in terms of ergonomy. So I have a few questions जो मैंने जैसे बताया जॉट किया. तो first we'll talk about the look of the bikes. तो I think इसमें लुक पर्सपेक्टिव भी होता है. कुछ लोगों को ओल्ड क्लासिक डिज़ाइन पसंद होती है, कुछ लोगों को न्यू डिज़ाइन पसंद होती है. तो आई थिंक मेरे ओपिनियन में KTM स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बिकॉज ये जो डिज़ाइन जो है मे बी थोड़ा लंबा चल सकता है, और मे बी दिस इज़ अ रेट्रो स्टाइल क्योंकि हेडलाइट सर्कुलर है. जो बाकी फिट एंड फिनिश तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रंट पोर्शन थोड़ा रेट्रो लुक आ रहा है इस बाइक में. व्हाट डू यू थिंक एज अ KTM ओनर एंड हिमालयन भी जो आप देख रहे हो, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द लुक्स? राइट. सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि हिमालयन का जो लुक है, एज यू राइटली मेंशन, राइट, दैट इट्स अ क्लासिक लुक एंड सम और द अदर वे आई थिंक मैं यहाँ पे शायद रॉयल एनफील्ड को पॉइंट्स नहीं दूंगा, बिकॉज आई फील कि ये जो है ना वो स्ट्रेच्ड वर्जन ऑफ एक्सपल्स लगता है. बिल्कुल एक्सपल्स की तरह दिखती है ये बाइक, एंड कुछ ज़्यादा उसके पीछे थॉट प्रोसेस मुझे लगता है कि कंपनी ने नहीं डाला टू मेक इट स्टैंड आउट इन मार्केट. पर्टिकुलरली इन वाइट कलर. एब्सोल्युटली. एक्सपल्स वाइट में तो आपको भर भर के दिखती है रास्ते पे, एंड वो बिल्कुल उसके जैसी लगती है. वो ऐसा लगता है कि फोटोशॉप में जाके आपने थोड़ा उसको स्ट्रेच कर दिया ना, बाद में आपने बस मार्केट में लॉन्च कर दिया, राइट. बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन KTM साइड उन लोगों ने बहुत ही यूनिक डिजाइन रखा हुआ है. उसके हेडलैम्प्स को ले लो या फिर उसके टैंक को ले लो, द कलर कॉम्बिनेशन आप ले लो. KTM हैज किल्ड इट इन टर्म्स ऑफ द लुक्स
It looks definitely like a premium high-end bike which is running in the international market. करेक्ट. एंड ऑल्सो इफ यू थिंक अबाउट दैट राइट, अब तक हाई एंड बाइक्स में कभी इस तरीके की हेडलाइट्स नहीं होती थी. हेडलाइट्स आर यूजुअली या तो फिर तुम्हारी वो बग आइस टाइप की हेडलाइट होती है या तो फिर सर्कुलर हेडलाइट होती है. दैट इज द वेरी कॉमन डिजाइन इन टर्म्स ऑफ द एडीवीज राइट. यहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच के डिफरेंट टाइप की हेडलाइट दी, जिसके वजह से वो क्लियरली पता चलता कि ये केटीएम है करके. स्ट्रेट आउट इट स्टैंड्स आउट टू दैट. Distinctive है काफी. राइट. एंड ऑल्सो ओवरऑल बाइक का भी जो प्रपोर्शनेट तरीके से डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल. क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बाइक आगे से बल्कि लगती है लेकिन पीछे होते होते वो बहुत स्लिम हो जाती है. बट ओवरऑल KTM हैज मैनेज टू कीप इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. That's true. राइट. सो वो तरीके से आई थिंक यस KTM हैज़ द एज ओवर हिमालयन 450. Yes, I also agree to that कि looks wise definitely KTM is a winner. All right, looks के बारे में तो बात कर लिया. At the same time, I would like to ask you about the fit and finish of the bike. What do you think about the fit and finish of the both the bikes? आई थिंक जो हिमालयन 450 है वो मैंने ज़्यादा नहीं चलाई है, तो डेफिनेटली आई डू नॉट नो मच अबाउट द फिट एंड फिनिश. बट मैंने जो ऊपर से देखा है वो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक लेवल का फिट एंड फिनिश है. हाँ, डेफिनेटली देव अप देयर गेम इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, बिकॉज रॉयल एनफील्ड का जो ओरिजिनल होता है वो बहुत रगिड लुक टाइप होता है एंड बहुत स्मूथ फिनिश नहीं है. कंपेयर टू दैट 450 में उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है. बट येस, व्हेन यू कंसिडर अ ब्रैकेट ऑफ 4 लाख का, तो उसके अंदर फिट एंड फिनिश आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हो, नॉट समथिंग लाइक जो 2 लाख 2.5 लाख की बाइक में आता है. इन दैट टर्म्स आई डेफिनेटली फील अगेन दैट KTM इज अ क्लियर विनर, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ इतना प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन की है, इतने प्रॉपर तरीके से फिनिश की है. एंड ऑल्सो उन लोगों ने ये बहुत सही तरीके से सोचा हुआ है डिज़ाइन करने के टाइम पे भी, कि उन्होंने जगह जो है हर चीज़ की वो बहुत कॉम्पैक्ट रखी हुई है. दे हैव नॉट केप्ट इट वेरी लॉन्ग. जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग दे दी है, उस तरीके से नहीं किया हुआ है. तो वो हिसाब से भी फिनिश का जो ओवरऑल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन खिल के आता है. तो आई फील इन दैट टर्म्स ऑल्सो अगेन KTM इज अ विनर ओवर रॉयल एनफील्ड. एब्सोल्युटली. मेरा जो ओपिनियन है, मुझे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे हेडलाइट उन्होंने फिक्स किया हुआ है विद दिस ऑल न्यू डैशबोर्ड, वो काफ़ी क्लमजी वर्क लग रहा है. यहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स जो यहाँ पे है वो एकदम ओपनली दिख रहा है. दैट शुड हैव बीन कवर्ड, और मे बी दे वुड हैव गिवन अ प्रॉपर फेयरिंग फ्रेम which covers this part which looks shabby, क्योंकि यहाँ पे एक बार डस्ट वगैरह आ जाता है तो this is going to be looking very dirty. Correct. So this part I feel is a work incomplete done by Royal Enfield. They should have completed this part and then launched this product. I agree to that. Let's move on to the next point, which I have to talk about the suspension. As audience knows, this is the ADV sector. So ADV में definitely people expect a long travel suspension. Right. So if I'm not wrong, this bike has a 220 mm ground clearance, and if KTM, I'm not wrong, 200 ground clearance है, which is a bit KTM lesser is lesser than Himalayan. Himalayan. So yeah, let's talk about the suspension of this bike. In this bike, we are getting the all-new Showa suspension, and in KTM, we are getting the all-new WP Apex. WP Apex, right. So what do you think, how the suspension works on this KTM machine? Suspension is good on this machine, but yes, when you go on off-roads, right, so you expect the suspension to be much more Soft. complementing you, right? When in terms of your riding through those pebbles and everything, you expect the suspension बहुत ही ज़्यादा soft, बहुत ही ज़्यादा smooth हो, जो कि नहीं है KTM में. That is a downside what I feel, कि jerks लगते हैं आपको जब आप off-road पे चलाते हो तभी. But ठीक है, मतलब considering it to be ADV, you expect it to be much smoother, right? So I think that's where KTM is lagging behind. So वो एक मेरे को दिक्कत आती है. Highways is okay. Highways पे आपको दिक्कत नहीं आती है, वो level पे it works fine. But yes, off-road side पे it has some work to do. Right. तो हिमालयन में as you know शोवा के सस्पेंशन दिए, अभी तक तो जो मैंने राइड करके फील किया कि the suspension does its job well. It is complementing the road conditions. जो फीडबैक्स है रोड से राइडर तक वो कंपैरेटिवली कम आ रहा है. सो विच आई थिंक इज ऑन अ गुड नोट. सो आई थिंक हियर वी वुड गिव 1 point to Royal Enfield Himalayan. In this point, Himalayan has worked on this and they have made this bike in terms of off-roading capabilities as well. Correct. Touring के बारे में हम लोग बात करेंगे when we talk about engine performance. Now off-roading capabilities, I think we should give it a और मैंने ये हिमालयन जो है वो ऑफ-रोड में कार्तिक से लैंड करके चलाई हुई थी, और मैंने वो रियलाइज किया कि there is a like 20 to 30% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्स जो
सस्पेंशन आपको देता है ड्यूरिंग दी ऑफ रोड्स. Right. So I definitely feel that yes, definitely Himalayan has done, or rather Royal Enfield has done a wonderful job here, and 1 point goes to Himalayan on Right. for sure the suspension. All right. After suspension, let's come to the engine, which is the main heart of the motorcycle. Right. जिस पे आप पूरे पैसे डालते हो. Correct. तो उसके बारे में बात करते हैं कि ये इंजन कैसा परफॉर्म करता है. Right. So we'll talk about first KTM, then we'll come to Himalayan. Either ways does it work for. Okay, or I'll talk about Himalayan first. So this is an all new Sherpa engine, which is a 450cc, and Royal Enfield has completely redesigned this engine as compared to its earlier, I would say 411 Himalayan जो थी. And this Sherpa engine पे जो response है, which is I felt when I was riding for the first time, I felt I'm not riding a Royal Enfield bike. I felt I'm riding a KTM or some other fast response bike, because जो इसका जो throttle when I was giving it, I felt that this bike demands high rev. This Correct. bike demands, or else whenever you're riding a Himalayan, आप low torque पे भी उसको pull कर लेते हो. That on first gear it will achieve any climb. Correct. इस पे मुझे rev करके ऐसा feel हो रहा था कि ये bike is asking me to rev. So I felt I am riding a KTM in fact. Right. तो coming to the engine point, इसका जो RPM है that starts from 3000 RPM. जो इसका जो मेन स्वीट स्पॉट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3000. उसके नीचे दिस बाइक इज ओकेश परफॉर्मेंस जो मुझे लगा, बट ऑन हाईवे दिस इज द बीस्ट कंपेयर्ड टू KTM. दिस इज एट पार, आई वुड से नॉट फार, बिकॉज अर्लियर इसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं थी इन कंपेयर टू हाईवे रनिंग. Right. बट अभी रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करके इसको एकदम कट टू कट नेक टू नेक कंपटीशन में ला दिया. I totally एंड agree. ऑन हाईवे दिस परफॉर्म्स लाइक एनीथिंग. इट इज आफ्टर 3000 till 7000 RPM you will be like enjoying the ride like anything. True. So that's where the engine performance part plays. What do you think about KTM on engine performance part? On engine, I think KTM does very good job when it comes to highways. For sure, आप कितना भी खींच लो, bike is capable of tackling all the obstacles you put onto the bike. I usually ride it with panniers and top boxes, so it's completely loaded when I usually ride it, and I easily go to 130, 140, और bike बिल्कुल शोर नहीं करती है, बिल्कुल चिल्लाती नहीं है. लेकिन the down part to it is 140 के ऊपर अब जब धीरे धीरे जाना स्टार्ट करते हो, तो then you start feeling the wobbling. So that's where your confidence starts getting weak, and आप फिर 140 is not as safe in Indian condition anyways. any which ways, but yeah, exactly. But बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हाईवे पे Right. they go way too fast, Right. and they have that in mind कि जहाँ पे लॉन्ग टूरिंग करते हैं, जहाँ पे रोड एकदम स्मूथ होते हैं, एंड वो तरीके की कंडीशन होती है, तो उसके अंदर ये बाइक धीरे धीरे करके वॉबल करना स्टार्ट करती है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार अभी सेफ नहीं है इसको और जाना, एंड देन यू रिड्यूस द स्पीड. एंड ऑल्सो 100 के ऊपर आप जैसे जाना स्टार्ट करोगे हो तो आपको वाइब्रेशन फील होना Right. स्टार्ट होती है बाइक पे. Yes. यू स्टार्ट फीलिंग दोज नमनेस इन हैंड जब बहुत ज़्यादा लंबा अगर आप चला लेते हो बाइक को. तो ये मैंने तो- काफी KTM ओनर से सुना भी है कि Yes. बाइक में वाइब्रेशंस है आफ्टर 100. आफ्टर 100, yes. Although yes, कोई इस बाइक में भी वाइब्रेशंस है, बट since this is a comparatively new bike, I'm not getting that response. Maybe I'll ride more, so I'll understand more. True. So yeah, vibrations is there above 100. But yeah, anyways, Indian conditions में आप देखोगे तो 100 is a safe speed spot, I would say, to ride on. अग्रीड. मतलब उधर तक उन्होंने प्रॉपर ही बाइक डिजाइन Right, की है. right. दिस इज फॉर समवन हु वांट्स टू गो रियली फास्ट, राइट. हु तो बहुत बार ये होता है कि हम जब भी वीडियोस देखते हैं Right. तो हम सारे के सारे ऑडियंस को टारगेट नहीं करते. Right. तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑडियंस होंगे जिनको बहुत ज़्यादा तेज जाना होगा. Right. तो उनके लिए वो जो पोर्शन है वो उनके लिए कि अगर आप 140 के करीब जाने के बाद भी अगर आप स्टेडीनेस एक्सपेक्ट करते हो तो देन डोंट गो फॉर दिस. Right. फॉर श्योर डोंट गो फॉर दिस. रॉयल एनफील्ड जैसे कि वाइब्रेशंस के लिए जाना जाता है, पुराने जो कल्चर है सब Right. बाइक्स में वाइब्रेशंस है ही. मतलब वाइब्रेशन के लिए लोग रॉयल एनफील्ड लेते थे. Exactly. डुक डुक डुक. लोगों ने मुझे बोला है कि भाई मुझे दुक दुक चाहिए तो ही मैं वो बाइक ले रहा हूँ. और इस बाइक में देयर इज गोइंग टू बी पीपल हु आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट बिकॉज वाइब्रेशंस पूरा किल कर दिया है. दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रॉयल एनफील्ड बाइक. राइट. दिस इज ऑल न्यू इंजन, तो वो लोगों को पता चलेगा when I they guess ride with this Himalayan machine. 450, Royal Enfield has created a altogether a different branch now. Right. जहाँ पे it is competing with most of the new age bikes. New riders, engaged riders. Engaged riders, exactly. So ये जो चीज़ है रॉयल एनफील्ड की वो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग है. और मैंने भी टेस्ट राइड दी थी रॉयल एनफील्ड की, एंड आई फील के वाइब्रेशंस, बिकॉज आई बीन अ रॉयल एनफील्ड राइडर इन द पास्ट एज वेल, सो आई नो कि क्या लेवल के वाइब्रेशंस होते हैं रॉयल एनफील्ड में.
बट यहाँ पे आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि जो तरीके से बाइक रिस्पॉन्स कर रही थी, जो तरीके से बाइक पे वाइब्रेशंस थे, जो तरीके से थ्रॉटल आप जैसे स्विच करते हो तभी इंस्टेंट जो आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो है, वो इस टोटली ऑफ रॉयल एनफील्ड के राइडर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट, टोटली उन लोगों ने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर दी है ये बाइक के साथ. करेक्ट. So let's move on to the next point, which I would like to ask you about the braking on this bikes. So engine के बारे में तो बात कर लिया. How about the braking? So what do you think about the KTM's braking? I think KTM has done an amazing job with the braking. उसमें dual ABS है and उसके वजह से आप कितने भी हाई स्पीड पे हो बट यू कैन कंट्रोल द बाइक वेरी वेरी इजीली. कोई दिक्कत नहीं आती है बाइक को. आई ब्रेक दिस बाइक व्हेन आई वाज एट 120 और बहुत ही इंस्टेंट ब्रेकिंग था, इमरजेंसी ब्रेकिंग था डेफिनेटली, बट द बाइक डिड एन अमेजिंग जॉब. शायद कोई दूसरी बाइक होती तो स्किड हो जाती वो स्पीड के ऊपर. द बाइक होल्ड टू द रोड एंड ABS also did the wonderful job and also the braking did an amazing job. Right. बहुत ही short distance के अंदर it reduced all the way to 20 kilometers. Oh, that's an amazing response from the braking, I feel. Okay. Talking about the Himalayan 450 braking, जब मैंने इसका राइड किया तो मुझे पता चला कि this again is something very special from Royal Enfield. पिछले बार जब उन्होंने हिमालयन लॉन्च की थी, मैक्सिमम पीपल कंप्लेंट अबाउट दी ब्रेकिंग. उसमें वन थिंग है इसकी ब्रेकिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. ऑल्दो यू कैन गो एट अ पर्टिकुलर स्पीड बट जब आप ब्रेक्स दबाते हो तो यू लूज दैट कॉन्फिडेंस. बट इन दिस बाइक द चैप्टर हैज़ बीन चेंज्ड. रॉयल एनफील्ड हैज़ वर्कड ऑन दी ब्रेकिंग एंड दिस बाइक का ब्रेकिंग इज़ टू गुड, जस्ट टू गुड. मतलब इवन यू टैप ऑन दी ABS, दैट नॉइज ऑफ ABS you won't be able to hear that. I have seen that कि बाइक रुक भी रही है at a very good speed of 100 to almost 10-15 and there is no feedback from the ABS or there is no noise of that ABS. So I think it's a very good thing by Royal Enfield. Good upgrade. So yeah, on braking I would rate both the bikes on a good point only. Exactly. And you expect this kind of braking from the ADVs when you're running at like such a high speed, right? Correct. You don't want to risk your life. Right. तो वो हिसाब से I think both of them have done that probably was one of the important priorities for them when they came up with such a heavy engine. कि ब्रेकिंग तो ज़रूरी होगी ही एंड इन एनी कंडीशंस. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि ब्रेकिंग नॉट ओनली ऑन रोड्स इट इज़ गुड, इवन आप ऑफ रोड पे चले जाओ वहाँ पे भी आप ब्रेकिंग करो तो बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स है ब्रेकिंग का. सो आई थिंक ब्रेकिंग वाइज देर इज नो नेगेटिव फीडबैक व्हाट आई कैन गिव प्रोबेबली अबाउट KTM और इवन विद रॉयल एनफील्ड एज मच एज आई हैव रिडन इट. Right. So we have spoken about the most of the parts like engine, braking, suspension. Next जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है वो है कि भाई इसको पालने में कितना खर्चा होगा, ओनरशिप कॉस्ट कितना होगा. तो एक बाइक तो ले लोगे आप, 4 लाख आपको लोन मिल जाएगी, लेकिन आपको जो सर्विस इंटरवल पे जो सर्विस सेंटर कॉस्ट करेगी वो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई KTM में कितना जाता है. भाई KTM को ना सफ़ेद हाथी के साथ जोड़ दो. ये बिल्कुल वैसी है, बहुत एक्सपेंसिव मेंटेनेंस है. सर्विस पे जाओगे सर्विस कॉस्ट भी बहुत हाई है इसके जो स्पेयर्स है वो भी काफ़ी हाई है. डेफिनेटली क्वालिटी भी इतनी अच्छी देते हैं वो लोग, बट देन येस व्हेन यू थिंक अबाउट मेंटेनेंस यू थिंक अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स. तो वो केस के अंदर KTM इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव. बट अ गुड थिंग दैट KTM हैज़ डन इज़ एनी इलेक्ट्रॉनिक्स इन KTM जो 5,000 के ऊपर के है वो 5 years तक रिप्लेसेबल है एट द KTM's कॉस्ट. तो वो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर जैसे आपका फ्यूल पंप खराब हो गया या तो फिर आपका डिस्प्ले खराब हो गया, बिकॉज ऑल ऑफ दिस आर डिजिटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बाइक राइट नाउ, तो वो कुछ भी खराब हो गया तो KTM अपने एक्सपेंस पे करती है. तो वो तरीके से अगर आप मिलजुल के देखने जाओ तो ठीक है, मतलब दैट्स ओके, यू कैन नॉट रियली बी वेरी सैड अबाउट इट. बट देन वही पार्ट है कि छोटी मोटी चीज़ें अगर खराब होती है तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है. सो टॉकिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जैसे बताया छोटे मोटे पार्ट्स वो सारे कवर्ड है इन एक्सटेंडेड वारंटी. तो 2 years का स्टैंडर्ड वारंटी आता है, आप इसको एक्सटेंड करके 5 years तक का ले सकते हो. उसमें फ्यूल पंप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, ऑफ कोर्स वेर एंड टायर पार्ट्स कवर नहीं होते, दे हैव देयर स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड. तो इन दिस आई वुड से दी सर्विस कॉस्ट अभी तक बोलना वुड नॉट बी राइट, बिकॉज अभी तक इसका सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुआ है, इसमें कोई मेजर पार्ट्स चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है, वॉशिंग हुआ है, दैट्स इट, एंड जस्ट चेन सेटिंग हुआ है. तो उसका कॉस्ट अराउंड 1800 था फर्स्ट कॉस्ट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपका विच इज अगेन एक्सपेंसिव.
एग्जैक्टली, range विच इज होगा। अगेन एक्सपेंसिव और Right. ऑलमोस्ट ऑन द पार विद केटीएम. So coming to the spare parts pricing, वो हम आगे जब ये बाइक को यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा. Maybe we'll make a separate video on the service cost of this bike after certain kilometers. Right. Not right now, but yeah, what I understand is it is going to be expensive because the parts used in this are premium. Like they have used the DID ka chain sprocket for the Correct. drivetrain, and of course the suspension and all are from Showa. Then again, उसके जो pricing होंगे to replace the fork coil and everything is going to be on a higher side only. Absolutely. So we'll talk about that later. Yes. Coming to the ownership point of view, अभी इसको लेने के लिए आपको इंडियन रोड पे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? देखिए, मैंने जब ली थी तो आई बॉट दिस इन 2021. तभी इसकी कॉस्ट थी अराउंड 390 ऑन रोड. राइट. 390 की कॉस्ट थी 390. ठीक है. तो लेकिन अभी अगर आप लेना चाहो तो ये तकरीबन जाती है 460 के करीब, बिकॉज ऑफ ऑल दोज टैक्सेस एंड एवरीथिंग ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर. वो ब्रैकेट्स भी चेंज होते रहते हैं रेगुलरली. एंड अभी काफ़ी सारे मॉडल्स भी लॉन्च कर दिए हैं केटीएम ने. केटीएम एक्स, एडवेंचर एक्स आ गई है एंड बहुत सारी. तो उनके वेरिएंट स्टार्ट होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3.5 से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज़ ऑल द वे टू 4.6. तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो. बट येस, आई विल डेफिनेटली से कि वो जो हर एक कैटेगरीज है, वो हर कैटेगरी अपने प्राइस रेंज को प्रॉपर जस्टिफाई करती है. Okay, you feel KTM is properly justified in its price range? आई फील दैट, या. Okay. ठीक है, but I mean we can agree to that because they're offering a premium product in compared to that. So coming to the price point of Royal Enfield, इन्होंने introductory price में launch किया था. It was at 2.69 ex showroom. तो on road around मैंने जो estimation निकाला था, it was coming to 3.4 or 4.5. Right now the cost has been increased by Royal Enfield by 16,000 on this bike since 1st Jan 2024. So इसका price लगभग अभी 3.5 के ऊपर ही जा रहा होगा. 3.6 or 7 we need to check from the showroom. But yeah, I feel this is also on a higher side at this moment because everyone won't be affording 3.6 bike. तो वो सोचेगा कि भाई मैं और 50-60 हज़ार डाल के KTM क्यों नहीं लूँ जो फुल्ली फीचर लोडेड है, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, कॉर्नरिंग ABS मिल रहा है. राइट. ऑल्दो इन्होंने राइड बाय वायर इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस बाइक पे, बट या अगेन स्लिपर क्लच मिल रहा है. सो दैट 50-60,000 एडिशनल इज जस्टिफाइड ऑन KTM, आई वुड से. सो रॉयल एनफील्ड इज नॉट ऑफरिंग अ लेसर प्राइस बाइक. दिस इज ऑल्सो आई वुड से ऑन अ हायर. जो लोग खरीदने जाएंगे उनके लिए महंगा ही रहने वाला है जो ब्रैकेट में. करेक्ट. आई थिंक इंट्रोडक्टरी प्राइस जो प्राइस था दैट वाज जस्टिफाइड. Right. एक्सपेंसिव अभी, और रॉयल एनफील्ड का ट्रेंड रहा है कि वो हर 6 महीने में प्राइसिंग बढ़ाती ही रहती है. तो यू नेवर नो, दिस बाइक विल रीच टू अ प्राइस पॉइंट वेयर यू नो दैट रीचेस KTM. इट इज बाय एंड अगेन रॉयल एनफील्ड का एक और ड्रॉबैक है, दे प्ले ऑन द कलर्स, करेक्ट. which I feel as a buyer is not justified. ठीक है, if you're giving features on the bike, I would rather be happy to pay that. But if you're playing with the colors and asking a premium price of 16,000 from the base variant is not justified. करेक्ट. 2-4 हज़ार समझ में आता है लेकिन not 16,000. It's not any technology which has been upgraded. एग्जैक्टली. So that's what I feel is right now pricing point of view, this is also on a higher side. मतलब इन्होंने cheap नहीं रखा है बाइक को. मतलब Right. ये पुरानी हिमालयन जब स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी सस्ती थी, तो लोगों ने खरीदा. फिर इन्होंने एक पॉइंट पे 2.7 तक पहुंचा दिया था उसका ऑन रोड प्राइस. तो विच इज़ ऑल्सो आई वुड से नॉट ऑन अ लेसर साइड. बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि रॉयल एनफील्ड अभी हिमालयन को बिल्कुल नेक टू नेक कंपेयर करने की कोशिश करी है KTM के साथ. दैट्स द रीज़न दे हैव इंक्रीज द प्राइसिंग इन सच अ वे कि अभी वो जो ऑडियंस है जो KTM 390 प्रेफर कर रही है, वो थोड़े प्राइस डिफरेंस की वजह से टूट के शायद हिमालयन के पास भी आ जाए. Right. वो भी एक रीज़न हो सकता है, वो ब्रैकेट डिफरेंस का. और उन्होंने ज़्यादा शॉर्ट इसके लिए भी नहीं रखा हुआ है ताकि यू नीड टू फील प्रीमियम. Right. वो इंडिया में होता है ना कि आप ज़्यादा पैसे देते हो तो चीज़ अच्छी है. राइट. वो अच्छी हो ना हो, लेकिन वो हमारे दिमाग में वो सोच होती है कि ज़्यादा पैसे दिए तो चीज़ अच्छी है. तो उस तरीके से तो दे आर प्लेइंग विद द मेंटालिटी, फॉर श्योर दे आर प्लेइंग विद द मेंटालिटी, बट इन अ गुड वे. वो मार्केट के लिए अच्छा है, बेहतर है, बिकॉज यू हैव टू थिंग्स नाउ. जब कोई कंपटीशन नहीं होती तभी दिक्कत होती है. Right. अभी यहाँ पे कंपटीशन है तो येस यू हैव टू अप योर गेम. अभी दोनों को अपना गेम अप करता रहना पड़ेगा रेगुलरली. तो दैट इज व्हाट आई थिंक इज अ एंड गुड. ऑलरेडी देयर इज अ न्यूज़ दैट KTM 390 का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है. यस Which is on the trial. बहुत सारे लीक्ड इमेजेस देखे हुए हमने इंटरनेट पे. करेक्ट.
तो मे बी नेक्स्ट ईयर दे विल अप द गेम. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर टू द डकार रैली में जो वो लोग राइड करते हैं, उसके सिमिलर है वो जो नया है उसका जो मॉडल है वो. सो यस, देयर इज यूनिकनेस कमिंग देयर. राइट. सो मेरे को ठीक है, हम लोग ने अच्छे तो काफ़ी बात कर लिया बाइक के बारे में कि क्या अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या ऑफर कर रही है, बट एज अ ओनर आपको क्या लगता है कि इस बाइक में क्या खामियां है और व्हाट इज़ नॉट अप टू द मार्क एज फ्रॉम KTM? आई थिंक एक जो दिक्कत है जो हर KTM ओनर को होती है सबसे ज़्यादा KTM के साथ, दैट इज़ ये लो एंड टॉर्क में बहुत ही बुरी है. सो लो एंड टॉर्क आपको यूजुअली सिटीज़ में जब भी राइड करते हो तभी आपको लगेगा, व्हेन यू डू एन ऑफ रोडिंग तभी आपको लो एंड टॉर्क लगेगा. ये सारी चीज़ों में लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा पिक्चर में आता है और वहाँ पे ये बहुत मार खाती है. लेकिन उसका फ्लिप साइड है कि KTM ने उसके अंदर क्विक शिफ्टर दे दिया है. तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि इंस्टेंटली यू कैन चेंज योर गियर्स एंड यू कैन पुश इट. लेकिन फिर भी इवेंचुअली वो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है उसके साथ प्ले अराउंड करने के लिए. तो ये एक जो चीज़ इसमें मार खाती है, दैट इज बेसिकली द लो एंड टॉर्क. एंड द अनदर थिंग एज वी स्पोक अबाउट इज हाइट. इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो जो शॉर्ट राइडर्स है उनके लिए वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, जहाँ पे वो टिपटो आ जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे टेरेंस व्हेन यू बाय एन ADV यू एक्सपेक्ट कि वो आप ऑफ रोड में भी यूज़ कर सकते हो, वो उसको आप रोड्स पे भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन शॉर्ट राइडर के लिए ये रोड के लिए ही हो जाती है, प्योर रोड बाइक हो जाती है. इट डजंट गो ऑन टू द ऑफ रोड, बिकॉज ऑफ रोड्स के अंदर अगर आपका थोड़ा सा भी मिसबैलेंस हो गया, आपका पैर टच हो ही नहीं रहा नीचे, तो आप उसको स्टेडी नहीं कर पाओगे. सो आई थिंक इन दिस पॉइंट रॉयल एनफील्ड हिमालयन विल बी अ टेक फॉर मेनी ऑफ द बायर्स, क्योंकि एक चीज़ इसमें आप ऑफ रोडिंग तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो. दूसरी चीज़ इन्होंने हाईवे जो टूरिंग के लिए भी है वो भी कम्प्लीटली इस बाइक में अपग्रेड करके मीट कर ली है जो ऑडियंस को. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि सीट हाइट, तो सीट हाइट ऑडियंस जो भी बायर है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है. अगर टॉल राइडर है तो 845 पे ले सकता है, शॉर्ट राइडर है तो 825 पे ले सकता है. प्लस रॉयल एनफील्ड ने एक्सेसरीज में 805 की भी सीट दे रखी हुई है. वाओ. सो वो भी उसके पास एक एडिशनल ऑप्शन है बायर के पास. राइट. सो आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग. तो काफ़ी सारे बायर जो शॉर्ट हाइट पे है वो लोग सीधा हिमालयन के लिए जा सकते हैं. करेक्ट. आई थिंक हिमालयन शायद 5'5" के हाइट वाले से लेके 5 आगे आप कोई भी हाइट ले लो, उधर तक राइडर्स हिमालयन को यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो 5'5" से बाद में आप सोचो मत यार, आपके पास हिमालयन है, मतलब दैट्स अ क्लियर विनर. लेकिन कार्तिक, आपको ये बाइक आपने जो चलाई अभी, तो तकरीबन आपने 250-300 किलोमीटर के करीब अभी ऑलरेडी ये बाइक राइड कर ली है. तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर व्हाट आर द कॉन्स अबाउट दिस बाइक? ठीक है, ये एक गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को ये जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि क्या कॉन्स है. टू बी वेरी फ्रैंक, कॉन्स इसके बहुत ज़्यादा नहीं लगे. फर्स्ट मुझे मुझे लगा मेरे हाइट के लिए कि जो राइडिंग ट्रायंगल है वो एक ADV वाला मुझे नहीं दे रहा था. इट वॉज कंपेरेटिवली स्ट्रेट, विच टॉलर राइडर्स के लिए इशू हो सकता है. मे बी दे कैन करेक्टेड बाय यूजिंग अ हैंडल राइजर और समथिंग लाइक दैट. सेकेंड थिंग जो मुझे लगा कि इसका लो एंड टॉर्क, ऑफकोर्स कंपनी हाई एंड टॉर्क को तो मीट कर रही है, बट लो एंड टॉर्क जब है हिली रीजन में फर्स्ट सेकेंड गियर्स में आपको रेव ज़्यादा रखना पड़ता है. मतलब यू हैव टू कंटिन्यूसली रेव टू रीच दैट हेयर पिन बेंड्स व्हेन आपको बैक टू बैक आ रहा है. तो आप बिकॉज जो पुराना 411 था उसमें लोअर थ्रॉटल्स पे भी आई वॉज, और एट अ कॉन्स्टेंट थ्रॉटल आई वॉज एबल टू टेक इट अप. इट वॉज आई वुड से अ ट्रैक्टर काइंड ऑफ इंजन. बट ये जो इंजन है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 RPM, तो इसमें रेव करते रहना पड़ता है आपको और मोमेंटम रखना पड़ता है थोड़ा. सो दैट व्हाट आई फेल्ट इज़ अ स्लाइट ड्रॉबैक. बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दैट, बिकॉज आपको दोनों चीज़ नहीं मिलने वाला. हाई एंड टॉर्क कंपनी ने मीट किया है तो कहीं ना कहीं तो एक कंप्रोमाइज़ हो ही जाएगा. वन थिंग इज़ दैट. सेकेंड थिंग, थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यूज इसमें है अभी भी. लिक्विड कूल्ड इंजन है, दैट इज़ पुटिंग द टेम्परेचर डाउन, बट जो हीटिंग है वो थोड़ा सा फील हो रहा है. हाईवे पे इतना नहीं हो रहा है, बट व्हेन यू राइड ऑन द सिटी रोड्स यू विल फील दैट हीटिंग ऑन योर लेग्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये जो यहाँ पे जो पोर्शन है वो मुझे क्लीन नहीं लगा. इट शुड हैव बीन डन वेरी वेल बाय रॉयल एनफील्ड. तो ये ओपन जो लग रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब बाकी वेल्डिंग वगैरह मैं इसका बोलूँगा कि पुराने बाइक से काफ़ी प्रीमियम रखा हुआ है इन्होंने इस बार. तो यही छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कॉन्स में आते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट 4 लाख प्रीमियम बाइक, आई वुड से रॉयल एनफील्ड को थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा इस पर कि इस वर्जन को बेस्ट वर्जन तक लेकर आए. बहुत सारे लोग फर्स्ट वर्जन नहीं भी खरीदेंगे थिंकिंग अबाउट द सेम, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का जो पास्ट हिस्ट्री है फर्स्ट वर्जन में हमेशा लोगों ने पछताया हुआ है लेके. तो इस बार
वो चीज़ के मामले में मैं बोलूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने पुराने लेसन सीखे हुए अपने Right. पुराने वर्जन से, और उन्होंने इस बाइक पे वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है अच्छे से. Right. बट स्टिल कुछ सेट ऑफ पीपल डेफिनेटली होंगे जो इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल. एंड रॉयल एनफील्ड विल वर्क ऑन दैट, आई फील, एज अ कंपनी, बिकॉज दे हैव बीन ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. राइट. मुझे जो एक चीज़ रॉयल एनफील्ड में मतलब जब मैंने टेस्ट राइड दी थी तभी मुझे जो फील हुई वाज बेसिकली उसका जो विंडशील्ड है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है. Right. तो व्हेन यू गो ऑन अ लॉन्ग राइड, मतलब डेफिनेटली मैंने उसको लंबे राइड पे तो चलाया नहीं है, बट वो जो शॉर्ट डिस्टेंस का भी मैंने जो ये टेस्ट राइड लिया था उसके अंदर आई फेल्ट कि उसके वजह से लॉन्ग राइड्स के ऊपर बहुत दिक्कतें हो Right. सकती है. Yes. और इट मे गेट द राइडर इनटू वो बोलते हैं ना कि फटीग मोड में Yes, वो absolutely. जल्दी लेके आ जाएगा आपको राइडर. विंड ब्लास्ट हो रहा है तो आप ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे. एग्जैक्टली. तो बट वो आई एक थिंक ये विंडशील्ड भी आपने चेंज किया हुआ है, इसका भी यस ओरिजिनल दिस इज छोटा ही था. करेक्ट. इसका भी ओरिजिनल छोटा आता है, Right. लेकिन आफ्टर मार्केट मिलता है Right. अभी इसका विंडशील्ड जो Yes. थोड़ा लंबा है, तो जिसके वजह से आप उस तरीके से आई थिंक कि रॉयल I think एनफील्ड के इसका लिए भी आ आ ही जाएंगे. मार्केट में कुछ ही टाइम में. जस्ट इट्स अ न्यू लॉन्च, तो अभी नहीं है फिलहाल अवेलेबल. राइट. डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज करेक्ट. जो आफ्टर मार्केट बनाते हैं. यस. सो फाइनली लेट्स, हम लोग ने काफ़ी कुछ बात कर लिया इस बाइक के बारे में. लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो बाय यू नो पुटिंग दिस लास्ट एक्स ऑन द लॉग कि कौन सा बाइक लेना चाहिए. सी मेरा ओपिनियन में ये है कि जो प्रोज और कॉन्स के बारे में हमने डिस्कस किया राइट, वो हिसाब से अगर आपका हाईवे टूरिंग है तो आई थिंक दोनों में से कोई भी बाइक ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है. बट द पॉइंट इज के अगर आपकी हाइट टॉल है, तो जैसे आपने बोला कि यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिमालयन, राइट, सो यू हैव अ चॉइस इज KTM के जो 6 फुट के ऊपर के राइडर्स हैं उनके लिए हिमालयन वुड बी KTM वुड बी अ बेटर चॉइस. एंड जो शॉर्ट राइडर्स है उनके लिए हिमालयन बिकम्स अ बेटर चॉइस. बाकी ओवरऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर यही चीज़ उभर के सामने आ रही है कि ऑलमोस्ट हर टाइप के टेरेंज में कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ बेनिफिट्स है. तो कहीं ना कहीं कोई ऊपर का पार्ट प्ले करता है, कोई नीचे का पार्ट प्ले करता है. सो इवेंचुअली एक तो आपके पॉकेट को क्या सपोर्ट करता है भाई, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पॉकेट पे क्या सपोर्ट करता है. एंड उसके अलावा बाकी हर किसी का इंडिविजुअल ये होता है, यस पॉइंटर्स होते हैं. किसी को डिज़ाइन अच्छी चाहिए तो किसी को परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए. तो उस हिसाब से जो ये है कि अगर डिज़ाइन अच्छी चाहिए तो भाई KTM के लिए चले जाओ, स्ट्रेट आउट विनर है. और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करो तो येस स्लाइट हायर एज हिमालयन के पास है, तो आप हिमालयन के साथ चले जाओ. यस. सो दैट इज वेयर आई फील. वन मोर थिंग, बाहर के माइंड में चल रहा होगा कि बाइक अभी लूँ, ये ऑब्सोल्यूट हो जाएगी क्योंकि नया वर्जन आ रहा है. Right. और ये फ्रेशली लॉन्च इन मार्केट है, तो इसको यार बंदे लोग लेने के लिए ऑलरेडी, आप इसका बुकिंग देखोगे तो ऑलरेडी हायर. और 3-1 साल तक तो दूसरी बाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे रॉयल एनफील्ड से, एटलीस्ट Right. 2 साल 3 साल तक. तो सो या इन दैट पर्सपेक्टिव I would say buyers can take a test ride and decide. Both the bikes are at his position in a good way. इसके वैल्यू फॉर मनी आपको मिल जाएगा जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो उसके लिए. और रॉयल एनफील्ड ऑल्सो डज द जॉब एट अ लेसर कॉस्ट. सो जिनका बजट जिसके हिसाब से वो ले सकता है बाइक. सो ऑल राइट गाइज, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिटेल्ड रिव्यू इस बाइक्स के बारे में बता दिया ऑलरेडी. सो लेट्स कंक्लूड दिस व्लॉग ओवर हियर. So thank you for watching this vlog. I hope you guys like, share and subscribe. जो भी आपके friends हैं जिनको confusion है ये bikes लेने के बारे में, so you can subscribe to my channel and share this video with your friends. So मिलते हैं अगले vlog में with somewhere else comparing or wandering some new places. Till then, keep supporting the Wanderer V and Sameep Shah Vlogs. Bye bye. Take care. बाय.